Students, today is Friday, April 30, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. So students, in the previous lecture, we have completed unit number 1 of science, and today we are going to start our chapter number 2, that is world around us. In this chapter, we will discuss mainly about our environment, what are the components of our environment, and what are the other environments that exist in the universe, okay, in detail, okay. So we will discuss about nature, what are the living organisms that play a role in making of this nature and this environment, the whole ecosystem. So moving on to our first topic, that is environment and interactions. Environment is the weather around us, okay. The weather and atmospheric conditions around us are environment, and interaction mean how one people interact या कोऑर्डिनेट या वर्क विद अदर्स, ठीक है। तो एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज नोन एज इंटरेक्शंस। द टर्म इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज वंस सराउंडिंग, हमारा इर्द गिर्द जो है दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हैबिटेट्स दैट सराउंड्स अस। सो ये किस चीज़ पे कंप्राइज्ड होता है, फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल। फिजिकल मीन ऐसे ऑब्जेक्ट्स that do not have life, and there are some biological objects, biological things. So it comprises of environment, it comprises of biological as well as physical things around us, okay. So we can feel them by our senses of sight, touch, smell, taste and hearing. पिछले चैप्टर के अंदर हमने जो सेंसेस देखे, जो स्टडी किए, उनको ही यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं। लाइक एयर, वी फील दैट, ठीक है। फॉर सनलाइट वी सी दैट, फॉर एग्जांपल any kind of sound or pollution, noise pollution, we hear, okay. And these all things are the part of our environment. So what are the components of our environment? So our environment comprised of two type of components. So the first is abiotic environment and the other is biotic environment. So abiotic उस चीज़ को बोलते हैं that has no life. So this means कि non living part of our environment is known as एबायोटिक, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हैं उनको हम एबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। और बायोटिक मीन्स दोज हु हैव लाइफ, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अस ह्यूमंस, वी कम इन द बायोटिक एनवायरनमेंट ऑफ as a component of our environment. So moving on to abiotic environment, it is the physical environment, as I already told. It includes air, water, light, temperature, soil and land. It includes all physical factors. So again discussing कि abiotic environment में क्या आता है हमारे पास, physical environment की चीज़ें like air, water, light, temperature, soil and land etc. So what are abiotic components? The physical factors of the environment which are non-living have a major influence on the life of organisms. The abiotic components are of two types. They are climatic factors and edaphic factors, okay. So जो abiotic या physical environment है हमारा, इसमें non-living things का major influence है। सो द एबायोटिक कंपोनेंट्स दो चीज़ों पे कंप्राइज्ड होता है। एक को कहते हैं हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट कहते हैं इन्वायरमेंट ओवर अ वाइड रीजन, बड़े रीजन के ऊपर या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। सो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इन्वायरमेंट इज अवर सराउंडिंग। वेदर इज द टेम्परेचर और द एटमॉस्फेयर अराउंड अस ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। और क्लाइमेट क्या होता है, over a particular region weather for a long period of time. So climatic factors होंगे, like climatic factors क्या है कि जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, यानी कि टेम्परेचर, यानी कि जो लाइफ पीरियड है या टाइम स्पेन ऑफ समर्स दैट इज इंक्रीजिंग एंड द ऑफ द विंटर्स इज रिड्यूसिंग। तो इसको टेम्परेचर के सेंस में लेंगे। फिर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, मेनली जो पहले इस्लामाबाद में बहुत कम रेंज होती थी, इस दफ़ा अब ज़्यादा हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो ये क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं। देन स्नो हो रही है, विंड है, लाइट है, ह्यूमिडिटी। इस दफ़ा
पीक विंड हुई है, ऐसी विंड इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर नहीं हुई, जो इस ईयर हुई है हमारी प्रीवियस मंथ में, मार्च में। स्नो, विंड, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को, ठीक है। So the climate of an area is the result of several factors such as latitude, elevation, nearness to the sea, monsoon activities and ocean currents, ठीक है। So जो क्लाइमेट किसी एरिया का होता है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक लैटिट्यूड मीन के कितनी हाइट के ऊपर कोई एरिया है। फॉर एग्जांपल विंटर्स या नॉर्मली इन्वायरमेंट में आप चले जाओ हायर एरियाज में, यानी मरी चले जाएं, आप कश्मीर चले जाएं, तो क्या है आप हाइट्स पे जा रहे हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं। तो जितना जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो क्या इन्वायरमेंट में चेंजेस क्या आती हैं कि कोल्डर होना शुरू हो जाता है, और जितना जितना आप साउथ की तरफ जाएंगे यानी कराची की तरफ जाएंगे तो इन्वायरमेंट गेट्स हॉटर। सो देयर आर सम फैक्टर्स, so these are some factors as mentioned here. So just like temperature influence the rates of biochemical reactions in plants, below some minimum temperature they are inactive and above a maximum temperature biochemical reactions stop. तो प्लांट के अंदर बायो मीन लाइफ और फूड के प्रोडक्शन के जो अमल होता है, प्रोसेस होता है, उसको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो वो रिड्यूस होता है या इंक्रीज करता है विद द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं। इसी तरह लाइट लेवल्स डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है जी? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्लांट्स। सो जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो रुक जाता है ड्यू टू लाइट इफेक्ट, कि लाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, लाइट डिम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। ओके, so then are the edaphic factors. So edaphic factors or soil factors are pH, mineral and organic matter in soil and texture of soil. तो हमारी soil है, अगर आप चले जाएं कश्मीर में तो वहाँ या मरी साइड पे तो वहाँ की soil different है, पंजाब की soil यानी ज़मीन लैंड्स different हैं। इस तरह आप साउदर्न एरियाज में चले जाएं वहाँ की लैंड डिफरेंट है, बलोचिस्तान चले जाएं वहाँ की लैंड डिफरेंट है, कहीं पथरीली है, कहीं पे मट्टी ज़्यादा है, कहीं पे मट्टी का टेक्सचर या कलर डिफरेंट है, कहीं पे ब्लैक आपके पास मट्टी होती है, कहीं पे रेड होती है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ अवर इन्वायरमेंट। सो सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन अ रॉक, सॉइल इज द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लैंड इकोसिस्टम। तो हमारे लैंड इकोसिस्टम में जो मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमें मिलते हैं या प्लांट्स को मिलते हैं, they are provided by the soil. So soil is formed when a rock weathers. The rock break down into a collection of different inorganic or mineral particles. The climate influences the type and rate of the weathering of the rocks as well as the nature of the vegetation growing on it. So nutrients are recycled in the soil by the plants and animals in their life cycle of growth, death and decomposition. Thus humus material essential to soil fertility is produced. Humus क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। वो कैसे बनता है कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, ठीक, और उसके बाद जो प्लांट्स जब मर जाते हैं तो उनके प्लांट्स मरने का क्या मतलब है, उनके लीव्स वगैरह गिर जाते हैं, ठीक है, प्लांट मुरझा जाता है। तो वो क्या होता है, लीव्स अगर आपने देखे हो तो वो नीचे ही ज़मीन में पड़े पड़े कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या होता है, वो सनलाइट की मौजूदगी में या टेम्परेचर की वजह से वो बर्निंग का प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो लिक्विड में या मिनरल्स में चेंज होकर सॉइल के अंदर जज़ब हो जाते हैं। तो वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वापस उसी प्लांट को, ताकि उसको ग्रोथ मिल रही होती है। So these are some factors from the abiotic environment. So moving on to biotic environment, I just brief you about it. What is biotic environment? We will discuss in detail in our next class. So what is biotic environment? It includes all living organisms around us like plants, animals and microorganisms. Bio mean life. So biotic component environment का वो component होता है जहाँ जिसमें क्या हो, लाइफ हो। लाइफ मीन कि एक बर्थ और फिर डेथ का एक प्रोसेस हो, ठीक है। सो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं दे आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एज अ बायोटिक फैक्टर. It is also called as living environment. So we will discuss them in detail in our next class, leading to the food chain and food webs in our next class. Your homework will be shared on the portal. Thank you for joining.
Allah Hafiz.